मसीह के नाम में आप सबको सलाम। Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है As you know that we have started a series कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल और गॉस्पेल ऑफ द बाइबल में क्या फ़र्क है। on the prosperity gospel and the gospel of the Bible. बाइबल की गॉस्पेल को समझने के लिए To understand the gospel of the Bible, हम इफिसियों का खत उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 9वीं आयत तक पढ़ेंगे। we'll be looking at Ephesians chapter 2 from verse 1 till verse 9. खुदा उनके पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है, It is written in the word of God, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जब अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे, and you were dead in the trespasses and sins, जिनमें तुम पेशतर दुनिया की रवश पर चलते थे, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानद तबई तौर पर गज़ब के फर्जंद थे, Among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यसु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, And raised us up with Him and seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यसु में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए, so that in the coming ages He might show the immeasurable riches of His grace in kindness toward us in Christ Jesus. क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे, not a result of works, so that no one may boast. इस हवाले में In this passage, एक आयत से लेकर तीसरी आयत तक इंसान की स्याकारी के बारे में बात की जा रही है। from verse 1 till 3, man's total depravity is being shown, कि हम गुनाहगार हैं, that we are sinners, हम मुकम्मल तौर पर मुर्दा हैं। that we are completely dead. इस बात को साबित करने के लिए मेरे साथ रोमियो उसका 3 बाब, To prove this point, let us move to Romans chapter 3, उसकी 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ेंगे। from verse 10 till verse 18 we'll be reading. खुदा उनके पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है, It is written in the word of God, चुनाचा लिखा है, कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं। verse 10 says this, as it is written, none is righteous, no, not one. कोई समझदार नहीं, No one understands, no one seeks for God. कोई खुदा का तालिब नहीं, सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। All have turned aside, together they have become worthless. No one does good, not even one. उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया। Their throat is an open grave.
they use their tongues to deceive. The venom of asps is under their lips. उनके ऊँटों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और कड़वाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो हैं. Their mouth is full of curses and bitterness. Their feet are swift to shed blood. उनकी राहों में तबाही और बदहाली है और वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए. And in their path are ruin and misery. उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं. And the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. इस हवाले में जो बात की गई है ये एक मसीही और एक उस शख्स जो कि मसीही नहीं है, दोनों में देखी जा सकती है. What's written in this passage, a Christian and an unbeliever are being shown. कि मसीही जब ईमानदार नहीं था उसकी जिंदगी में भी यही गुनाह थे और वो शख्स जिसने अभी तक यीशु मसीह को कबूल नहीं किया उसकी जिंदगी में भी यही गुनाह हैं. That when a Christian was not a believer, he had these sins in his life, and when he became a believer, these ended, and these sins still exist in the lives of the unbelievers. जैसा कि हमने सुना कि एक मसीही की जिंदगी में से ये गुनाह खत्म होना शुरू हो जाते हैं. As we have heard that these sins start ending in a believer's life. ये कैसे मुमकिन है? How can this be? एक शख्स जो गुनाह करने में बहुत अच्छा महसूस करता है, A person who feels good while sinning, उसे उसमें खुशी महसूस होती है. he feels happiness in that. ये कैसे मुमकिन है कि एकदम एक शख्स तब्दील होता है और इन चीजों से नफरत करता है जो रोमियो 3 बाब में लिखी हुई है. How can such a radical change come in a person that the things that he loved now he hates? इसको समझने के लिए हम खुदा की खुशखबरी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए यशायाह 53 निकालेंगे और उसमें से पढ़ेंगे. To understand the gospel of God better, we'll be reading from Isaiah chapter 53. यशायाह 53 उसकी 10वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक पढ़ेंगे. Isaiah chapter 53, we'll be reading from verse 10 till verse 13. लेकिन खुदावन को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया. जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वह अपनी नस्ल को देखेगा. Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. आमीन. Amen. इस आयत में हमने खुदावन यीशु मसीह के मुतालिक एक पेशन गोई को पढ़ा. We have read in this verse a prophecy concerning about our Lord Jesus Christ. कि किस तरह यीशु मसीह हमारे गुनाहों को सलीब पर ले लेगा और हमारे गुनाहों की सजा मसीह यीशु बर्दाश्त करेगा. That how he will take our sins on the cross and how he will bear the punishment of our sins on the cross. इस सजा में खुदा का इंसाफ, In this punishment, the judgment of God is seen. खुदा का प्यार, The love of God is seen. खुदा का रहम, The mercy of God is seen. खुदा की शफकत, The mercy and grace of God is seen. ये इतने पहलू, इतनी सफात हमें खुदा की देखने को मिलती हैं. We can see
a lot of God's attributes in खुदा this picture. खुदा का वो इंसाफ जो हमारे खिलाफ भड़कना था, The wrath of God which had to come on us, वो गजब जिसके हम हकदार थे, the wrath which we deserved, जिसके नीचे हमने कुचला जाना था, under which we deserved to be crushed, हमारी जगह उसने बर्दाश्त ये सब कुछ किया जिसने गुनाह तक नहीं किया. He bore all of this because of us who didn't sin. एक मसीही जब मसीही होता है A Christian, when he is a Christian, तो वो खुदा की मोहब्बत को, he understands the love of God, वो खुदा के गजब को he understands the wrath of God, समझता है, he understands all of these things. और उसकी जिंदगी में एक हकीकी तब्दीली आती है. A true change comes in his life. इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. I'd like to give you an example of this. मैं आपको मिसाल देता हूँ. मेरे साथ जो भाई बैठे हैं इन्होंने मुझे अपने घर बुलाया. For example, this brother sitting next to me has called me to his home. और मैं आते हुए रास्ते में कुछ देर से आया इनके घर. And I came a bit late to his house. मैं इनके घर आया और उन्होंने मुझसे पूछा, आइज़िक भाई किस वजह से आप नहीं आए? And when I came to his house, he asked me why you came late. तो मैं उन्हें बोलूँगा, भाई मुझे रास्ते में एक ट्रक से मेरी टक्कर हो गई. And I'll say that I was hit by a truck on the way here. और मैं इनके घर सही सलामत आ गया. But I came to his house well. मुझे देखकर ये क्या कहेंगे What will he say when he sees me? कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं, That brother, you are lying. या तो आप पागल हो गए हैं. Either you have gone mad. क्योंकि जब कोई बंदा ट्रक से टकरता है When a person is hit by a truck, तो उसका कुछ ना कुछ टूटता जरूर है. something of his does break. जब कोई शख्स सलीब पर ईमान लाता है When a person believes in the cross, और अगर उसकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आती and if there is no change in his life, तो वो झूठ बोल रहा है he is lying या वो प्रिटेंड कर रहा है. or he is pretending. जब हम खुदावन की खुशखबरी को समझते हैं When we understand the gospel of God, और खुदावन का फजल हम पर होता है, when God's grace is bestowed on us, तो हमारी जिंदगी में एक सच्ची हकीकी तब्दीली आती है. a true change comes in our life. क्योंकि हमें सलीब पर खुदा की मोहब्बत, खुदा का इंसाफ, खुदा की रहमत देखने को मिलती है. Because on the cross we see God's love, mercy and judgment. वो तमाम की तमाम सजा जो अब्दियत में हमने जहन्नुम में गुजारनी थी, वो सलीब पर खुदावन यीशु मसीह को मिली सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से. All of that punishment that we had to take in eternity in hell, that punishment Jesus took on the cross. मैं आपको एक सच्ची तब्दीली की मिसाल देना चाहता हूँ. I'd like to give you an example of true change. ये खुदावन के खादम चार्ल्स स्पर्जन ने दी हुई है. This example was given by God's minister Charles Spurgeon. कि तसव्वुर कीजिए एक सूअर है For example, there is a pig. और हम उसके सामने एक गंदा खाना रखते हैं और एक बिल्कुल साफ प्लेट में खाना रखते हैं. We put in front of him trash and good food, और हम उस सूअर को छोड़ देते हैं and we leave that pig, और वो सूअर भागेगा और तेजी से भागकर गंदे खाने को खाना शुरू करेगा. that pig will go towards the trash और उसको खुशी से खाएगा. and he will eat it happily. लेकिन तसव्वुर कीजिए कोई एक ऐसा शख्स उस सूअर की पास ही कहीं खड़ा है Think of a person who is sitting next to that pig, जिसके पास ये पावर है कि वो सूअर को इंसान में तब्दील कर सकता है. that person has power to change that pig into a human, और वो शख्स उसको इंसान बना देता है. and that man makes that pig a human. तो वो इंसान जब अपने आप को कूड़ा
गंदा खाना खाते हुए देखेगा तो उसे अपने आप से नफरत होगी। वो क्या खा रहा है, वो क्या काम कर रहा है। When the person thinks about him eating that trash, he will hate himself that what he was doing, क्योंकि उसकी फितरत तब्दील हुई। because his nature has been changed. वो साफ खाना खाने की कोशिश करेगा। Now he will eat the clean food. यही हाल हमारी कुछ तब्दीली का है This is a true story of our conversion. कि हम जब मसीही नहीं थे तो हम गुनाह करना बहुत पसंद करते थे। That when we weren't Christians, we loved sinning. हम गुनाह को खुशी से करते थे, We did sin happily. फख्र महसूस करते थे We felt proud because of our sin, कि लोग हमें अच्छा कहेंगे। that people will call us good. लेकिन जब एक शख्स मसीही होता है तो वो गुनाह से नफरत करता है। That when a person becomes a Christian, he hates his sin. वो गुनाह से दूर भागने की कोशिश करेगा। He'll try to run away from sin. वो खुदा की पाकीज़गी को देखेगा जो यीशु मसीह में हम पर जाहिर हुई और मसीह यीशु की पैरवी करने की कोशिश करेगा। He will see the holiness of God in which was shown to us through Jesus, and he will try to follow Jesus. क्या आप में ऐसी तब्दीली हुई है? Has such a change come in your life? क्या आप गुनाह से नफरत करते हैं Do you hate your sin? या प्यार करते हैं गुनाह से? Do you love your sin? ये सवाल करने की हमें जरूरत है। We have to ask this question. क्या हम सच्चे मसीही हैं That are we true Christians? या हम सिर्फ बस प्रिटेंड कर रहे हैं, हम दिखावा कर रहे हैं? Or are we just pretending? हमें सच्ची खुशखबरी से वाकिफ होना बहुत जरूरी है We should know the true gospel. और इसके लिए हमें जांफशानी करनी होगी। We have to strive to do it. हमें कलाम को पढ़ना होगा, We'll have to read the word. हमें खुदा से दुआ करनी होगी। We'll have to pray to God. तो खुदा जरूर हम पर जाहिर करेगा। Then God will truly unveil to us. आप जो टीवी चैनल्स पर सुनते हैं, What you hear on TV channels, अक्सर और बेशतर आपको जिंदगी के हालात तब्दील करने के मुताल्लिक बताएंगे जब आप मसीह यीशु पर ईमान लाएंगे। most of the time they'll say that your circumstances will change when you believe in Jesus. हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। When Jesus comes, the circumstances change. कौन से हालात बदलते हैं? आपकी अंदरूनी शख्सियत की या सिर्फ बाहरी के बदलने चाहिए? Which circumstances? The circumstances of your inner nature or the circumstances around you? हमें अपने अंदरूनी शख्सियत को देखने की जरूरत है कि क्या वो मसीह की मानद बन रही है या नहीं। We have to see our inner nature. Is it becoming like Jesus? मेरा आपसे एक सवाल है, I have a question for you. आपने यीशु मसीह को क्यों कबूल किया है? Why did you receive Jesus Christ? क्या आप वो बरकतें हासिल कर सके जो उसके पास है, Just for the blessings that he has? या यीशु मसीह को जो सबसे आला खजाना है, जो खुद हमारे लिए खुदा था और जो खुदा है और रहेगा? Or for Jesus himself, who is our treasure, who is our God? क्या उसमें हमारी खुशी है? Is our happiness in Jesus? मेरा सवाल है कि क्या आप मसीह से वाकिफ हैं? My question is this: do you know Jesus? और क्या अगर आप मसीह से वाकिफ हैं तो आप जरूर सच्ची खुशखबरी से भी वाकिफ होंगे। If you know Jesus, you will know the true gospel. लेकिन आप अगर सच्ची खुशखबरी से वाकिफ नहीं है तो आपको वाकिफ होने की बहुत जरूरत है, क्योंकि ये जहन्नम और हमेशा की जिंदगी का फैसला है। If you don't know Jesus, then you need to know him, because this is a question of hell and heaven. एक मसीही गुनाह से इतना दूर भागेगा, मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आपने कभी सूखा घास देखा होगा एक जगह पे? A Christian will run away so far from the sin. I'll give you an example of dry grass. उसको एकदम जब हम आग लगाएंगे तो वो आग पकड़ेगा। When you burn that straw, it will burn quickly. क्योंकि वो
इसी काम के लिए बना हुआ है कि जले, because it is made for that very purpose of burning. तो हमारे अंदर से जो ख्वाहिशात निकलती है उनका सामना करना सबसे मुश्किल होता है. The desires that come in us are very hard to fight. और वो उस घास की मानद होती हैं जो जल्द जल जाता है. They are like that straw which burns quickly. कि हम अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए खुदा को भूल जाते हैं और खुदा के खिलाफ गुनाह कर डालते हैं. To fulfill our desires, we forget God and we sin. एक मसीही अपनी ख्वाहिशों से भागेगा. A Christian will run from his desires. वो अपने लालच से भागेगा. He will run from his greed. वो अपनी सेक्सुअल इमोरलिटी से भागेगा. He will run from his sexual immorality. वो पैसे की मोहब्बत से भागेगा. He'll run from the love of money. और मुख्तलिफ गुनाहों से वो भागेगा. He will run from different sins. क्योंकि ये अंदर से निकलते हैं. Because they come out of him. एक मसीही की ये निशानी है This is the mark of a Christian. कि वो गुनाह से भागता है. That he runs from sin. क्या भागते हैं हम गुनाह से? Do you run from your sin? या आप उसके पास जाके बैठ जाते हैं? Or do you go sit next to it? गुनाह के. Sin, next to sin. मेरा सवाल यही है फिर कि क्या आप खुशखबरी से वाकिफ हैं? My question is again this. Do you know the gospel? और अगर आप खुदा से वाकिफ हैं And if you know God या खुशखबरी से, and his gospel, तो आपकी जिंदगी में तसल्ली, there will be peace in your life. आपकी जिंदगी में खुशी, There will be joy in your life. इत्मीनान, And there will be more peace in your life. ये सब और सब सिर्फ और सिर्फ खुदा ही होगा. All of this will be God in your life. कलाम को पढ़िए, Know the word of God. कलाम को समझिए, Understand the word of God. खुदा से दुआ कीजिए, वो जरूर आपको बताएगा. Pray to God. He will surely unveil himself to you. खुदा आप सबके साथ. God bless you all. आमीन. Amen.